Yesterday, I was saying how the greater work that we can do today, which Jesus could not do, was to make two people into one. कल हम सुन रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि कैसे परमेश्वर से यीशु मसीह बढ़कर हम कार्य कर सकते हैं जो उसने नहीं किया, कि दो जन को वो मिलाकर यूनाइट एक साथ कर सके। And in the history of the world, we can say that is the most difficult thing to do. और जगत के इतिहास में यह सबसे कठिन बात है होना। As soon as Adam sinned against God, he was separated from Eve. जैसे ही आदम ने पाप किया, वो हवा से अलग किया गया। And when Jesus came to save us, he not only came to save us individually, but also to save us in our relationships with one another. केवल प्रभु यीशु मसीह हमें अकेले को बचाने नहीं आया, लेकिन हमें एक करने भी आया। Remember what Jesus said in Matthew 19. मत्ती 19 में हम याद करेंगे प्रभु यीशु ने क्या कहा। The Pharisees came and asked Jesus, is it lawful, verse 3, for a man to divorce his wife? फरीसियों ने आकर जब उससे पूछा कि क्या यह उचित है कि मनुष्य अपनी पत्नी को त्याग दे, वचन 3। And then Jesus said, no, you know how it was from the beginning. और प्रभु यीशु ने कहा, ऐसा नहीं है, कि आप जानते नहीं है कि शुरुआत में ये कैसा था। And he said these words, that verse 6, consequently they are no longer two but one, and what God has joined together nobody should separate. तब प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि शुरुआत में ऐसा नहीं था, जिसे परमेश्वर ने एक किया है, जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग नहीं करे। So those who are married know how difficult it is for two people to become one. इसलिए जो शादीशुदा है उनको पता है कि कितना कठिन है दो जन का एक होना। Many people think that Christians are separated only on the basis of doctrine. बहुत से सोचते हैं कि वचन के आधार पर मसीह लोग अलग होते हैं। That means one church believes one doctrine, and that's why another church pulls out because they got a different doctrine. और कोई सोचते हैं कि एक कलीसिया कुछ बातों को मानती है और इसलिए वो दूसरी कलीसिया से अलग हो जाती है। But if you look at every church having the same doctrine, you find it's very difficult for two people to become one. जब हम देखते हैं कि दूसरी कलीसिया भी जो पहली कलीसिया मानती है तो एक होना आसान है। Within the church, कलीसिया के अंदर for two people to become one who believe exactly the same doctrine, जो एक ही मत के हैं वो कलीसिया में एक होना, or a husband and wife who believe exactly the same doctrine, it's और difficult to become one. और पति पत्नी जब एक ही बात पर सहमत होते हैं वचन के अनुसार, तो उनके लिए एक होना आसान है। Any holiness that we think we have, which does not lead to deeper fellowship with others, is a deception. कोई भी पवित्रता अगर हमारे अंदर है, ये किसके साथ संगति रखने से हमें मिलती है, ये एक फंसना है। We can think we are getting holier, हम सोचते हैं कि हम और अधिक पवित्र बन रहे हैं, but one test of it is that we will have more fellowship with other people who are also seeking to become holier. इसकी एक परख है कि हम जो अधिक अच्छे पवित्र जी रहे हैं उनके साथ हमारी संगति है। So if fellowship is not increasing, then we are living in a world of self-deception. अगर हमारी संगति बढ़ रही नहीं है तो हम एक फंसने वाले जीवन में जा रहे हैं। That's what John says in 1 John chapter 4. इसलिए यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना इसका 4 अध्याय। It's good for us to see these scriptures so that we know that God himself says these things. इसलिए अच्छा है हम वचन को देखें, परमेश्वर ने स्वयं जो कहा है। Verse 20, if anyone says, I love God and he hates his brother, he's a liar. 18वां वचन, 20. 20वां वचन, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है। The Christian world is full of people who think they love God. मसीह लोग ये सब जानते हैं कि हम सब परमेश्वर से प्यार करते हैं। They think like that. वो ये ऐसा सोचते हैं, But it's not true, ये सच्चाई नहीं है, because they can't love somebody else in their own church. क्योंकि वो कलीसिया अपनी ही कलीसिया में किसी भाई या बहन से प्रेम नहीं कर They सकते, can't love somebody else in their own home. क्योंकि वो अपने परिवार में किसी से प्रेम नहीं कर सकते। And then it says, if you cannot love your brother, you cannot love God.
इसलिए यहाँ लिखा गया है कि अगर आप अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, Because this brother is someone you can see. क्योंकि यह इसलिए है कि आप भाई को देख सकते हैं। And if you can't love somebody you can see, how can you love somebody you cannot see? जब आप किसी देखने वाले से प्रेम नहीं कर सकते तो न दिखने वाले से कैसे प्रेम कर सकते हैं। It's a very simple logic that John uses here. और ये सीधी साधारण बात है जिसे यूहन्ना ने यहाँ इस्तेमाल किया है। And if we keep this before our mind, we will never deceive ourselves. और ये अगर हमारे बुद्धि के सामने, हमारे मन के सामने रखेंगे तो हम कभी भी फंसेंगे नहीं। That the test of my relationship with God is my relationship with my fellow believers. कि ये परख है मेरा परमेश्वर से संबंध जैसा मेरा संबंध मनुष्य से है। Now, as I said, this was not true in the Old Testament. ये हमारे जीवन में सत्य In साक्ष्य नहीं है। no, in the Old Testament, जूने करार में ये नहीं था ऐसा, because they didn't have the Holy Spirit dwelling within them. क्योंकि उस समय उनके पास पवित्र आत्मा उनके अंदर रहने को नहीं था। And that's why even with the preaching of Jesus for 3.5 years, those disciples could not become one. क्योंकि इसीलिए पवित्र आत्मा नहीं होने के कारण यीशु मसीह की 3.5 साल सेवा होने के बाद भी प्रेरित एक साथ नहीं हो सके। When I see that, जब मैं यह देखता हूँ that even Jesus could not make 11 people one with his fantastic preaching, तो यीशु मसीह अगर 11 लोगों को एक नहीं कर सका अपनी सेवा में, with all his preaching, उसके पूरे उपदेश से, then I don't believe that my preaching is going to make even 2 people one. तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरे प्रचार से ये कठिन है 2 जन को भी एक करना। So we can understand all the principles by listening to God's word. तो हम परमेश्वर के सब सिद्धांतों को जान सकते हैं परमेश्वर के वचन को सुनकर। But it's only when we allow the Holy Spirit to fill us, really fill us, that we'll become one with others. तभी ये हो सकता है जब हम पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे हमारे अंदर वास करने के लिए, तब हम एक हो सकेंगे। So on the day of Pentecost, we can think of these 120 people like 120 pieces of iron that were put into a fire. ये हम देख सकते हैं पेंटिकॉस्ट के दिन 120 लोग वो इस लोहे के टुकड़े के जैसे थे जो एक साथ रखे गए थे, In the fire. आग में रखे गए थे। And when they came out of the fire, it was one piece. जब वो आग में से बाहर आए तो सब एक जुड़े हुए थे। That's what the Holy Spirit does. यही है पवित्र आत्मा का कार्य। So a lot of people who think they have the fire of the Holy Spirit, if it has not melted them, then they're not really the fire of the Holy Spirit. अगर हमको किसको एहसास है कि पवित्र आत्मा हमारे पास है और अगर वो पिघले नहीं तो ये ठीक नहीं है। If 2 people can imagine they are filled with the Holy Spirit, but then they should melt into one. जब 2 लोग ये कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो उनको जरूरी है वे पिघल जाए, एक हो जाए। When we don't love the truth about ourselves, God allows us to be deceived. अगर हम परमेश्वर के सत्य प्रेम को स्वीकार नहीं करते तो परमेश्वर हमें फंसने के लिए, धोखे में जाने के लिए अनुमति देता है। See 2 Thessalonians 2. 2 Thessalonians chapter 2. 2 थिस्सलुनीको उसका 2रा अध्याय। It speaks about certain people, verse 10, who did not receive the love of the truth so as to be saved. जिन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया और वे धोखे में आ गए To be saved. उद्धार पाने के लिए। 2 Thessalonians chapter 2. 2 थिस्सलुनीको 2रा अध्याय और 10वां वचन। So when they did not receive the love of the truth to be saved, it says in the next verse, therefore God sent a deluding influence on them so that they might believe what is false. 11, 10 and 11. 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। उस अधर्मी का नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार संपूर्ण सामर्थ्य चिन्हों और झूठे आश्चर्यकर्मों के और दुष्टता के हर एक धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो। इसी कारण परमेश्वर उन पर भरमाने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। See, that's a terrifying verse that God himself will deceive us. ये बहुत हिला देने वाला वचन है कि परमेश्वर में स्वयं धोखे में जाने के लिए अनुमति देता है।
Satan, we know, tries to deceive us. शैतान हम जानते हैं कि हमें फंसाने की कोशिश करता है, And the Bible says our lusts in our flesh are also deceitful lusts. और हम ये भी जानते हैं, वचन कहता है हमारे शरीर के अंदर को अभिलाषाएं हमारे फंसाने के लिए है। In Mark 4, we read about the deceitfulness of money. हम मार्क के 4 अध्याय में पढ़ते हैं कि धोखा, धन का धोखा कैसा है। So money can deceive us, पैसा हमें धोखा दे सकता है, making us think everything is okay because we got plenty of money. और ये हमारे मन में विचार करना कि हमारे पास बहुत पैसा है, इसके लिए सब कुछ ठीक है। And our lusts can deceive us, हमारे अभिलाषा हमको फंसा सकती है, and the devil can deceive us. और शैतान हमको फंसा सकता है। And all these things are around us all the time. और ये सब पाप हमारे चारों ओर हमेशा रहते हैं। We're always dealing with money. हम हमेशा पैसे के व्यवहार में पड़ते हैं। We always have our lusts troubling us every day. हमारे अंदर हमेशा अभिलाषा रहती है, And the devil's also around us every day. और शैतान भी हमारे चारों इर्द गिर्द रहता है हमेशा। And all three are trying to deceive us. और ये तीनों हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। Now, deception is done so cleverly that you don't know that you're deceived. और ये धोखा इस तरह से चतुराई से होता है कि हम जान नहीं पाते धोखा हो रहा है। See, if somebody gives you 500 rupee note and you know it's not a real note, अगर कोई आपको 500 रुपए की नोट देता है और आप जानते हैं वो सच्ची नोट नहीं है, then you're not deceived. तो आप फंस नहीं सकते। You're deceived only when you think it's a real note. आप फंस तभी सकते हैं जब आप ये सोचेंगे कि ये नोट सच्ची है। So, the man who's deceived does not know he's deceived. तो मनुष्य जब फंसता है वो जान नहीं पाता है वो फंस रहा है। And that's important to remember, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है that when we are deceived by the devil, we don't know we are deceived. तो ये हमें खातरी करना है कि जब हम शैतान के द्वारा फंसाए जाते हैं हमें पता नहीं रहता है, And when your money deceives you, you don't know you're being deceived. और जब हमारा पैसा हमको धोखा देता है हमें पता नहीं चलता हम धोखे And में when हैं। your lusts deceive you, also you don't know you're being deceived. और जब हमारी अभिलाषा हमको धोखा देती है हमको पता नहीं रहता हम धोखे में जा रहे हैं। Our only hope is if God gives us light and shows us that is deception. जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और हमें बताता है, उजाला दिखाता है कि ये धोखा है। It took me quite a few years after I was born again to discover the deception there is in money. पैसे में धोखा है इसे समझने के लिए मुझे कई साल लगे वचन के द्वारा। And the more I discovered it, I discovered that lots of believers haven't seen that deception. और जब मैंने यह देखा और जाना तब मैंने देखा कि बहुत से विश्वासी ऐसे धोखे को जान नहीं पाए, And lots of people in our churches. हमारे कलीसिया में भी। And the result is that they don't grow spiritually. और उसका नतीजा ये निकलता है कि वे आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पाते। They are good people. वे अच्छे लोग हैं। They are like children who get 100% in kindergarten. वे ऐसे बच्चे हैं जैसे छोटी कक्षा में वो 100% मार्क ले रहे हैं। And 20 years later, they still get 100%. 20 years later, they still get 100%. 20 साल के बाद भी वे 100% लेते हैं, But they are still in kindergarten. They are still in the kindergarten class. लेकिन वो तभी तक एक छोटी सी कक्षा में है। So that's not great to get 100% for 20 years in the same class. एक ही क्लास में 100% मार्क लेना 20 साल तक ये उचित नहीं है। If you got it in your first year, it's good. या पहले साल में अगर 100% पा लेते होते बहुत अच्छी बात है। So I've seen believers like that. They are good believers. 20 years later, they are good believers, but they are not progressed. मैंने यह देखा है कि 20 साल पहले भी भाई अच्छे हैं और 20 साल बाद भी वे लोग बहुत भले हैं, अच्छे हैं, They are not dropping out of school or getting zero or any such thing. वो स्कूल को भंग नहीं करते और जीरो लेते, ऐसी बात नहीं है। But you don't see any spiritual growth in them into the likeness of Christ or the knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान में और प्रभु यीशु मसीह के समानता में उनके अंदर हम उन्नति को नहीं देखते। In their own mind, because their knowledge increases so much, they think they are becoming more spiritual. और उन्हें यह भ्रम होता है कि हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, इसके लिए हम आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं। Or because they attend so many meetings, they think they are spiritual. और उन्हें यह लगता है कि हम बहुत सी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत आत्मिक हैं। Or because they understand the doctrine correctly, they think they are spiritual. वो समझते हैं कि हम वचन को सही रीति से जानते हैं, इसके लिए हम आत्मिक हैं। One of the greatest deceptions among Protestant and Pentecostal Christians is this. सबसे बड़ी मसीह लोगों में, पेंटिकॉस्ट लोगों में ये फसवणुक है, धोखा है। They think that correct doctrine will save them. उन्हें लगता है कि सही वचन का ज्ञान उन्हें बचा लेगा।
My doctrine is all correct. मेरी वचन की पहचान सही है। I have said the magic words, Lord Jesus, come into my heart. मैंने ये वचन कह दिया है, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए, Now I am safe for eternity. मैं अनंत काल तक उद्धार पाया हुआ हूँ। I would say that is one of the greatest deceptions of Satan. मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि शैतान की सबसे बड़ी ये धोखा देने वाली बात है। If you don't take heed to it, you got to be careful where you're going to end up when you finish your life. आप अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप हो सकता है देखेंगे कि आपके अंत के समय में आप ऐसे ही होंगे। If correct doctrine could save people, the Pharisees would all have been saved. अगर सही वचन का ज्ञान अगर बचा सकता तो सब फरीसी लोग उद्धार पाए हुए होते। Jesus gave a certificate to the Pharisees' doctrine in Matthew 23, verse 2 and 3. मत्ती के 23वें अध्याय में 2 और 3 वचन में यीशु मसीह उन्हें That एक सर्टिफिकेट देता है जो सही के वचन में, Everything they say is correct. कि वो जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। Everything they say is correct. जो भी वो कहते हैं वो बिल्कुल उचित और सही है। But in the same chapter later on, he said, how will you escape hell? और वो इसी अध्याय में यीशु मसीह उनसे कहता है आप नरक की अग्नि से कैसे बचोगे, Because he said, your life does not match up with your doctrine. क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हारा जीवन उस वचन के आधार पर सतर तक नहीं पहुंचता। You only clean the outside of the cup so that you have a good testimony before people. तुम अपने पात्र को बाहर से धोते हो कि तुम्हारे पास अच्छी साक्ष्य हो। The condition of most born again people is exactly like that. नए जन्म लिए हुए बहुत से लोगों की विश्वासियों की स्थिति ऐसी है, Their doctrine is absolutely correct. उनका वचन का ज्ञान बिल्कुल सही है They don't have wrong doctrines like many other denominations in Christianity. और अनेक अलग भागों के लोगों को जैसा अलग ज्ञान है वैसा उनका ज्ञान नहीं है, And their outer life is very clean. और उनका बाहरी जीवन बहुत ही अच्छा है, शुद्ध है, Exactly 100% like the Pharisees. बिल्कुल पूरी रीति से जैसे फरीसियों का जीवन रहता था। Do you think the Pharisees thought they were going to hell? क्या आपको लगता है कि फरीसी ऐसा कभी सोच सकते थे कि वे नरक की ओर जा रहे हैं? They thought, how can we go to hell when our doctrine is all correct and our external life is so clean? वे सोचते थे कि अगर हमारा वचन का ज्ञान इतना सच्चा है और अच्छा है और हमारा बाहरी जीवन इतना अच्छा है तो हम कैसे नरक की ओर जा सकते हैं? Nobody dared to say that to them till Jesus got up and said, you will go to hell. यीशु मसीह के अलावा कोई उनके सामने हिम्मत से ये बोल नहीं पाया। Teaching us that correct doctrine will never take us to heaven. सीधी अच्छा वचन सीखना हमें ये स्वर्ग नहीं ले जाएगा, And teaching us that a good external life will also not take us to heaven. बाहरी जीवन को सुधार करना और उसके लिए सीखना ये हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगा। Because even in the Old Testament, it was written, क्योंकि जूने करार में भी यह लिखा हुआ है, man looks on the outward appearance, मनुष्य का देखना बाहरी रूप से होता है, but God looks at the heart. परमेश्वर हृदय को देखता है। He doesn't see my outward appearance. आप मेरा बाहरी God doesn't see my outward appearance. आप मेरा बाहरी रूप देख सकते हो, परमेश्वर केवल मेरा बाहरी रूप नहीं देखता, He looks on the inside. मेरे हृदय को देखता है। He looks at your inside. आपके हृदय को देख रहा है, He looks at your attitude towards people. वह आपके उस नजरिए को जो आप लोगों के प्रति रखते हो उसको देखता है। He looks at your attitude to money, आपका उस नजरिए को जो पैसे के प्रति आपका है वो उसको देखता है। your attitude to sexual lust. वह आपके शरीर की अभिलाषाओं को प्रति आपका ध्यान कैसा है देखता है। Those are the things God looks at. Those are the things God looks at. वही बातें हैं जहाँ परमेश्वर हमें देखता है। Man only looks to see whether you come to the meetings regularly, मनुष्य केवल देखता है कि हम सभाओं में नियंत्रण Well, समय में आ रहे हैं, whether you know the Bible, हमको परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से so पता many है। external things like that. बाहरी कितनी सी बातें हमारी बहुत अच्छी है। If we want to please the Lord, the number one requirement is to finish with trying to please men. पहली बात, अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें मनुष्य को प्रसन्न करना रोकना You होगा must end with that. और उसको हमें You अंत must करना होगा। cut it off and say, Lord, I never again want to please a human being. अगर हमें ये करना है तो हमें परमेश्वर से कहना है मैं फिर कभी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं I जीऊंगा, want to live before your face. मैं केवल तेरे सम्मुख जीना चाहता हूँ। You know, just like they have many practices for a drama, जैसे हम देखते हैं कि ड्रामा के लिए, नाटक के लिए उन्हें बहुत से रिहर्सल प्रैक्टिस करने and पड़ते the हैं, more rehearsals they do, the better the drama is. और जितनी वे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, उतना अच्छा उनका ड्रामा और नाटक होता है। I many times have a rehearsal of standing at the judgment seat of Christ. मैं कई बार ऐसा रिहर्सल करता हूँ अपने आप में परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने अपने आप को It's लेकर। very helpful for me. I would recommend it to you also. ये मेरे लिए बहुत लाभदायक हुआ है, मैं इसको आपको सबको सुझाव करूंगा इसके लिए। I shut my eyes and I imagine that Christ has come.
मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूं और ये विचार करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं, and he calls people one by one, और वह एक एक करके लोगों को बुला रहे हैं, and then my turn comes, और फिर मेरा नंबर आता है and I stand before him, और मैं उसके सामने खड़ा रहता हूं, and he strips me of all my external testimony, और मेरी बाहरी गवाहियों को वो पूरी रीति से फाड़ देता है, and he throws away all the books and tapes and all of mine and says, no, I'm not going to look at all that. और वो मेरे सब किताबों को जो मैंने उसके लिए लिखे हैं और जो और टेप रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्डिंग किए, वो सब निकाल देता है, All the thing which the world calls ministry, he throws that all away. और वे सब बातें जिनको जगत सेवा कहता है यीशु मसीह उसे निकाल कर फेंक देंगे, And he says, let me look at your inner life now. और तब प्रभु यीशु मसीह मुझसे कहता है, मुझे तेरे हृदय के अंदर के जीवन को देखने दे। What were the type of things you were thinking about most of the time? आप कौन सी चीजों को ज्यादा समय विचार करते थे? Were you thinking about me or were you thinking about money? क्या आप मेरे विषय में सोचते थे, क्या पैसे के विषय में सोचते Were थे? you thinking about purity or something impure? क्या शुद्धता के लिए आप सोचते थे, क्या अशुद्धता के लिए? And did you have a loving attitude to people or did you have jealousy and bitterness against people? क्या आपका मनुष्य के प्रति, भाइयों बहनों के प्रति प्यार का विचार था या जलन रखने का और कटुता रखने का विचार था? Did you backbite, gossip, speak evil about people behind their back? क्या आप लोगों की पीठ पीछे निंदा करते थे, उनकी बुराई करते थे? That's going to be the assessment of my life. ये मेरे जीवन को परखने का एक तरीका है, And those rehearsals really helped me. और इन रिहर्सल से मुझे बहुत ही लाभ हुआ है, Because if I evaluate myself by what I think is success in my ministry, I'll just deceive myself thoroughly. और अगर ये मैं ऐसे सोचता हूँ, जांचता हूँ कि ये सब चीज़ों से मेरे जीवन को आशीर्वाद है, तो ये मेरे खुद को फंसाना है। No, I've got to evaluate myself by my thought life, my attitudes, मुझे मेरे विचारों से और अंदरूनी जीवन से मुझे परखना है, and the motives with which I say things or do things. The motive और मेरे उद्देश्य, मेरे काम करने के उद्देश्य को, with which I speak something to somebody. किस उद्देश्य से मैं किससे बात कर रहा हूँ। You know, sometimes you can say something that sounds so loving and your motive is not loving at all. और किस समय हमको ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत कितनी प्यारी है, लेकिन उसका उद्देश्य उतना प्यारा नहीं रहता। God is going to judge all that. परमेश्वर इन सब बातों का न्याय करेगा। So if I fear God, I will cleanse myself all the time. और अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो इन सब बातों से And मैं so, अपने आप को शुद्ध करूंगा। one of the prayers I pray to God is, Lord, please show me my inner condition every day. मैं परमेश्वर से एक बात में हमेशा प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, मुझे अंदरूनी मनुष्यता का हमेशा तू दृश्य दिखाते रहे। You know, more important than you're taking a bath or shower every day is to cleanse your heart every day. इससे बहुत ही जरूरी है, जैसा हम रोज स्नान करते हैं उससे कई गुना जरूरी हमारा हृदय को हम रोज शुद्ध करें। It's not such a serious thing if I don't take a shower one day, ये बहुत ही गंभीर बात नहीं है अगर एक दिन में नहीं नहाता हूँ, but it's a very serious thing if I don't cleanse my heart for one day. लेकिन ये बहुत हानिकारक है, पाप है अगर मैं अपने हृदय को एक दिन भी शुद्ध नहीं करता हूँ। I'm just telling you the way I have tried to preserve my own life. ये मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से मैंने अपने जीवन को संभाला है। I can't say, oh, I accepted Jesus 50 years ago, I'm okay. मैं ये आपसे नहीं कह सकता कि मैंने यीशु मसीह को 50 साल पहले स्वीकार किया है, सब ठीक है। If I don't love the truth about myself, अगर मैं अपने विषय सत्य की साक्षी को ग्रहण नहीं करता, to be saved from sin that God shows me, जो पाप परमेश्वर मुझे दर्शाता है उससे बचने के लिए, to be saved from wrong attitudes to other people, उस पाप से बचने के लिए जो गलत धारणाएं और विचार है मेरे लोगों के लिए, I'm not talking about offending people. मैं ये नहीं कहता हूँ लोगों को दोष देने के लिए। If I offend people because of something that concerns me, that's sin. अगर कोई चीज मुझ पर लागू होती है और मैं उस पर दोष लगाता हूँ भाइयों पर, तो ये पाप है। You know, somebody hurts me and then I go and hurt him. अगर कोई मुझे दुखी करता है और मैं जाकर बदले में उससे दुखी करता हूँ, That's evil. ये पाप है, बुराई है। But when we follow Jesus, जब हम प्रभु यीशु का we पीछा will करते हैं, offend many people because we preach the truth. तो हम बहुत से लोगों को दोषी ऐसा करार करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं। We don't have to go and apologize to any of them. और इसके विषय में आपको किसी से जाकर क्षमा नहीं मांगनी है, You see, Jesus didn't go to the Pharisees. क्योंकि यीशु मसीह फरीसियों के पास नहीं गया क्षमा याचना के लिए। I'm sorry to call you generation of vipers.
मैंने आपको सांपों के बच्चे कहा, ऐसा मैंने इसके लिए आपसे क्षमा मांगने आया I'm हूँ। so sorry that I said you'll all go to hell. मैंने आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ कि मैंने आपको सब नरक जाओगे ऐसा कहा, I heard that some of you got offended because of that. क्योंकि मेरे बोलने से बहुत दुखी हो गए, दोषी अपने आप को पाया, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। The word of God will offend thousands of people who don't accept the Bible as the authority for their life. परमेश्वर के वचन को अधिकार समझकर जितने लोग इसे स्वीकार नहीं करते, परमेश्वर का वचन उतनों को हर समय दोषी करार करता है। Non-Christians will be offended when you say Jesus Christ is the only way of salvation. Non-Christians will be offended when you say Jesus Christ is the only way to the Father. जब आप अन्य जातियों के सामने ये कहोगे कि यीशु मसीह केवल ही परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग है, इससे वे दोषी पाए जाएंगे। You know, people ask me that sometimes. प्रभु, लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, Non-Christians. जो मसीह लोग नहीं है, Why are you Christians so narrow-minded? आप मसीह लोग इतने छोटे मन के क्यों हैं? There's so many ways to God. परमेश्वर की ओर जाने के बहुत से रास्ते हैं। I said, truth is narrow-minded. मैं कहता हूँ ये छोटा मन Say का रहना अच्छा है, truth ये truth. सच्चाई है। Truth is always narrow-minded. हाँ, सच्चाई बहुत ही छोटी रहती है हमेशा। I shall give you an example. ये एग्जाम्पल सच्चाई है। 2 plus 2 is 4. 2+2 जैसी सच्चाई है, 4 होते हैं। Now somebody says, why are you so narrow-minded? Why don't you accept 3 also as an answer? आप लोग कहते हैं, आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते 2+2 4 नहीं 3 हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं स्वीकार? Be broad-minded. आप बड़े मन के हो जाओ। 5 is also an answer. 5 भी उत्तर हो सकता है, 200 is an answer. 200 भी इसका उत्तर हो सकता है। I say, I'm sorry. मैं कहता हूँ क्षमा कीजिए। 2 plus 2 is 4. There is no other answer. 2 और 2 मिलकर 4 ही होते हैं, उसके अलावा कोई उत्तर नहीं है। It's even a little bit, 3.9. Wrong. 3.999 ये भी गलत है, It's 4. ये 4 ही होता है। That's the way. Jesus said, I am the truth. No one comes to the Father but by me. ये सच्चाई है, जिसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरे द्वारा, मेरे को स्वीकार किए बिना So, कोई भी परमेश्वर के पास आ नहीं I सकता। tell them, are you asking me to call Jesus a liar? आप तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या मुझसे आप यह कहलवाना चाहते हैं कि यीशु मसीह एक झूठा है? Oh, then they get disturbed and say, no, we're not asking you to call Jesus a तब liar. वे तकलीफ में आ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, ये कहते हैं हम ये आपसे नहीं कह रहे। But then I have to tell you what Jesus said. No one comes to the Father but by him. तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, यीशु मसीह ने स्वयं कहा मेरे बिना कोई भी पिता के पास आ नहीं सकता। And in the 2nd century, Christians were killed for saying that. और दूसरी सदी में मसीह लोग इस बात के लिए मारे गए थे। Today, Christians are scared to say that because they'll get disturbed in some way, troubled in some way. आज भाई मसीह लोग डरते हैं इस बात से, क्योंकि इससे बहुत तकलीफ में आ सकते But we हैं। must love the truth, आप सच्चाई से प्रेम करना चाहिए, especially the truth about ourselves. विशेष सच्चाई जो हमारे विषय में है। If, for example, if God shows me some pride in something I said or did, आज मैंने कुछ कह दिया, उसमें मेरी बात में कुछ परमेश्वर मुझे घमंड दिखा रहा है। not what people say. People may think I'm proud. I think a lot of people thought Jesus was proud. और बहुत से लोगों ने सोचा यीशु मसीह घमंडी है, आप में से कई सोचते रहेंगे, वैसा नहीं। That doesn't care one bit for me. I don't bother one bit about that. और इसके लिए मैं, लोग मुझे कह रहे हैं, इससे मैं But चिंतित नहीं a होता। lot of people thought Jesus was very hard. बहुत से लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह बहुत ही पक्का, कड़क, दृढ़ है। Calling people generation of vipers. परमेश्वर अब यीशु मसीह लोगों से कहता था कि तुम सांपों की संतान हो। You know, some people say to me sometimes, brother, why can't you be gentle like Jesus? कई लोग मुझसे ये कहते हैं, भाई आप यीशु मसीह के जैसा नम्र क्यों नहीं होते? I say, he called people generation of vipers. I've never done that. परमेश्वर भाई उत्तर देते हैं उनको कि यीशु मसीह ने लोगों से सांप की संतान कहा, मैंने ये नहीं कहा। He called his co-worker Peter Satan. I've never called any of my co-workers Satan. यीशु मसीह ने अपने साथ काम करने वाले प्रेरित को कहा शैतान, पतरस को। He said, if you stumble a little child, you must get a millstone, a heavy one, and go and jump in the sea. उसने कहा कि अगर तू किसी छोटे भाई को, विश्वासी को धोखा दे रहा है, तो तेरे लिए अच्छा है कि गले में चक्की का पाट बांध और समुद्र में डूब मर। This is the gentle Jesus you're talking about? क्या इसी नम्र यीशु के विषय में आप बात कर रहे हैं? Trouble is you fellows haven't read the Bible. आपका ये तकलीफ है कि आप लोगों ने वचन को पढ़ा नहीं है। You read selected portions. Come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. आप कुछ ही चुने हुए वचनों को पढ़ते हैं, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। You got a one-sided picture of Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के एक साइड के, एक तरफ के And दृश्य that's को the देखते trouble हैं। with a lot of Christians. ये बहुत ही तकलीफ वाली बात है बहुत से मसीहों में। But Jesus is not only full of grace, he's also full of truth. Truth केवल and यीशु मसीह grace. पूर्ण दया से भरा हुआ नहीं है, पूर्ण And सच्चाई से भरा the हुआ glory नहीं है। of God is seen in truth and grace. और परमेश्वर की महिमा सच्चाई So- और दया में दिखती है। And he said, if you don't love the truth और to वो be कहते हैं, saved, आप अपने उद्धार के लिए अगर सच्चाई से प्रेम नहीं करते, then God says in verse 11, he himself will deceive you.
तब परमेश्वर स्वयं अनुमति देगा आपको फंसने के लिए। Not only the devil will deceive you, शैतान आपको नहीं फंसाएगा, he will deceive you. शैतान फंसाएगा, Money will deceive you. पैसा आपको Your फंसाएगा, lust will deceive you. आपकी अभिलाषाएं आपको And फंसाएंगी, your only hope of salvation, God Himself will also deceive you. आपकी एक ही मात्र आशा उद्धार पाने यीशु मसीह पर, वो भी आपको फंसने देगा। What a terrible situation that can be. ये कितनी गंभीर और बुरी दशा हो सकती What है। does it mean to love the truth? ये इसका अर्थ क्या है कि सच्चाई से प्रेम करना। First of all, it means to God's word is truth. Jesus said in John 17:17. परमेश्वर का वचन यूहन्ना के 17 अध्याय 17 वचन में कहता है, पहला ये कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल सच्चा है। And when I see some truth in Scripture, और जब मैं कुछ वचन में सच्चाई को देखता हूँ, even if 1,000 million people say the other thing, I say you're wrong. और अगर हजार लाखों लोग भी कुछ इसके विपरीत कहते तो मैं कहता हूँ आप सब गलत है। There's a very favorite verse of mine in Romans chapter 3 and verse 3. रोमियो के 3 अध्याय और 3 वचन में एक बहुत ही भाई को पसंदीदा वचन है। Romans 3 and verse 4. चौथा वचन 3 अध्याय रोमियो का। It says in the middle of that verse, let God be true and every man be found a liar. इसमें लिखा है, हम पढ़ेंगे, Middle of that verse, let God be true and every man be found a liar. ऐसा कदापि न हो वरन परमेश्वर ही सच्चा ठहरे, चाहे प्रत्येक व्यक्ति झूठा पाया जाए। So that's the position I take. और इसी स्थिति में मैं हूँ। Supposing, there are nearly 7,000 million or 700 crore people in the world today. आज इस जगत में 7,000 करोड़ लोग हैं, अगर हम सोचेंगे। Supposing they all say, you cannot overcome sin. और वे सब हम विचार करेंगे, ये कहते हैं कि आप पाप पर जय नहीं पा सकते। But God's word says, sin will not have dominion over you. और अगर परमेश्वर का वचन कहता है पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा। The Lord asked me that question once. और आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझसे एक बार प्रश्न किया। Supposing nobody in the world believed in victory over sin. और भाई से कहा कि कोई भी इस जगत में विश्वास नहीं करता कि पाप पर जय है। And only you are the only one who believed it from God's word. और केवल एक तू ही है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करता है। Would you still stand for it? और आप इसके लिए हमेशा सीधे और खड़े रहेंगे? I said, yes, Lord. इस अंगीकार पर खड़े रहेंगे। और भाई ने कहा, हाँ परमेश्वर। Let God be true and every man a liar. और केवल परमेश्वर ही सच्चा ठहरे, चाहे पूरा जगत दोषी और झूठा पाया जाए। And the Lord said, will you accept Jesus Christ as your example, even if all other Christians don't follow that example? और क्या केवल तू यीशु मसीह को अपना उदाहरण जानकर चलेगा, चाहे पूरा जगत उसको अपना उदाहरण जानकर I चलता said, नहीं? yes, sure. और मैंने कहा, हाँ परमेश्वर। I don't care if other Christians compromise and change things. और मैं इसकी चिंता नहीं करता कि मसीह लोग समझौता करते हैं वचन पर। See, the biggest area where Christian work today goes away from the principles of Jesus is in the area of money. पैसे के विषय में ज्यादा मसीह लोग अपनी सेवा में परमेश्वर के सिद्धांतों से अलग है। They don't follow the principles of Jesus in the matter of money. पैसे के विषय में वे यीशु मसीह के सिद्धांतों को पालन नहीं करते। The early apostles did. केवल उन पहले प्रेरितों ने किया। And the early apostles used to teach that any preacher who asks you for money is a false prophet. और उन्होंने तब कहा कि कोई भी अगर नबी आकर आपसे पैसे के विषय में मांगता है, कहता है, whoever it is, कोई भी एक मसीह भाई बहन है, वो झूठा है। One of the earliest books, Christian books, that is written after the Bible. परमेश्वर के वचन बाइबल के बाद एक किताब लिखी गई है। Is a little booklet called The Teaching of the 12 Apostles. और वो छोटी पुस्तक जिसका नाम है प्रेरितों की शिक्षा है। It was written in the 2nd century. ये दूसरी सदी में लिखा गया किताब है। I read it once. मैंने एक बार उसे पढ़ा। And there it says, और वहाँ लिखा है, whichever preacher asks you for money, he is a false prophet. कोई भी प्रचारक आपको पैसे के लिए मांग करता है, वो एक झूठा प्रचारक है। That is how the early apostles distinguished between the true servants of God and the false servants of God. इसी तरह पुराने प्रेरितों ने झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता के अंतर किया। And by that standard, you can say that 95% of today's preachers are all false prophets. और उसी स्तर को लेकर हम देख सकते हैं कि 95% प्रचारक झूठे हैं। And the proof of that is none of them tell you how to overcome sin. और इसका प्रमाण है कि उनमें से कोई भी यह नहीं कहता कि आपको पाप पर जय है। They only tell you how to be healed and how to make money and things like that. और वे केवल आपको इसी बात पे प्रचार करते हैं, आप चंगे कैसे हो सकते हैं और पैसे कैसे कमा सकते हैं। The blessing of God is supposed to live a comfortable life on this earth.
और परमेश्वर की आशीष यही है, वे बताते हैं कि इस धरती But पर आनंद का जीवन If जीना। that is a comfortable life, then none of the apostles pleased God because they didn't have a comfortable life. क्योंकि प्रेरितों को किसी को भी सुख और आनंद का जीवन इस धरती पर नहीं था। अगर ऐसा ही प्रचार है So तो we need to come back to what is written in the scriptures तो हमें फिर से वचन की ओर आना है। क्या लिखा है वचन में? and say, if it is not in the word, I don't care who preaches it, it's wrong. और फिर हमें यह कहना है कि अगर कोई भी प्रचार कर रहा है, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तो मैं इसे स्वीकार If नहीं Jesus करता। didn't do it, I don't care which preacher or 10,000 preachers do it, it's wrong. अगर यीशु मसीह ने वो नहीं किया, फिर 10,000 भी प्रचारक कर रहे हैं, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। And success is not the test of God's approval. और परमेश्वर की ओर से ये मान ली गई बात, हमारा उन्नति ये नहीं है। Jesus said that many will come and say, Lord, we can't heal the sick in your name, did miracles in your name. और उस दिन आकर बहुत से लोग कहेंगे, परमेश्वर वचन में लिखा है कि मैंने तेरे नाम में लोगों को चंगाई दी There और was- भविष्यवाणी की। There was success. वो अपने जीवन में तरक्की पाए हुए लोग But हैं। Jesus said, go to hell, all of you. और उससे यीशु मसीह कहता है आप नरक की ओर Because there चले। was sin in your life. क्योंकि तुम्हारे जीवन में पाप था। So God allows people to be deceived. क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर अलाउ करता है, अनुमति देता है लोगों को फंसने के लिए। That means He can allow people to believe that they are born again when they are not born again. और हम लोगों को मान लेते हैं कि उनका नया जन्म हो चुका है, जबकि उनका नया जन्म नहीं हुआ होता। God allows them to believe what is false. परमेश्वर उन्हें अनुमति देता है इस कारण से कि वे जो धारणा रखते हैं उसमें चले। See 2 Thessalonians 2:11. दूसरा थिस्सलुनीके का दूसरा अध्याय 11 वचन हम पढ़ेंगे। It says in the last part, इसके आखिरी के भाग में हम पढ़ते हैं, God makes them believe a lie. परमेश्वर उनको एक झूठ की प्रतीति करने को अनुमति देता है। He allows them to believe a lie. एक झूठ की प्रतीति करने को परमेश्वर उनके लिए अनुमति He देता है। allows them to believe they are born again when they are not born again. परमेश्वर उनको इस बात की अनुमति देता है विश्वास करने के लिए जो सच नहीं है कि उनका नया जन्म हो He चुका है। believes they are born again just because they said the magic words once, Lord Jesus, come into my heart. ये वो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को एक बार अपना उद्धार करता हृदय में आज ये स्वीकार किया, इससे वो कहते हैं हमारा नया जन्म हो He चुका है। allows them to believe that just because their doctrine is right, they are born again. परमेश्वर ये अनुमति दे देता है उनके लिए क्योंकि उनका बात सच्चा है कि उनका नया जन्म हो He चुका है। allows them to believe that they are filled with the Holy Spirit just because they speak in tongues. परमेश्वर अनुमति देता है क्योंकि वे अन्य भाषाएं बात करते हैं, ये फसों धोखे में रहे कि उनका नया No, जन्म हो चुका they're है। not filled with the Spirit. They don't manifest the Spirit of Christ. वे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। वे प्रभु But- यीशु मसीह को अपने जीवन से नहीं But दर्शा रहे they हैं, are absolutely convinced that they are filled with the Spirit. लेकिन अपने हृदय में वे पूरी तरह से सांत्वना पाए हुए लोग Why? हैं कि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। Why? क्यों? Because God makes them believe a lie. क्योंकि परमेश्वर उनको इस फसौणुक में, You know, इस झूठ में रहने की अनुमति देता है। This is one of the most terrifying verses in the whole Bible. पूरे बाइबल में एक बहुत ही हिला देने वाला, कंपा देने वाला वचन है। How can I be saved from that? मैं इस वचन से कैसे बच सकता हूँ? I can be saved from that only if I love the truth. मैं इससे बच सकता हूँ केवल अगर मैं सत्य से, जो अपने विषय में परमेश्वर बताता है, मैं प्यार करता To हूँ be saved. उद्धार पाने के लिए। First of all, when I read something in Scripture, I must say that is the truth. और अगर मैं कोई चीज वचन में पढ़ता हूँ और मैं उसको दावा करता हूँ ये सच है, And everybody else is false. और बाकी सब लोग झूठे हैं, I want to encourage you, brothers and sisters, you'll never be deceived if you take that position. मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूँ भाई और बहनों, आप कभी इस पर विश्वास करके You चलने know, से फंसने वाले नहीं है। but if you respect some preacher so much, पर अगर किसी प्रचारक को आप इतना आदर करते हैं, even me, मुझे भी, you respect me so much that you don't go by Scripture, कि मुझे इतना आदर करते हैं कि आप वचन के अनुसार मुझे नहीं देखते, you will be deceived. आप फंस जाएंगे। We must never respect a preacher so much that we respect him more than God's word. परमेश्वर के वचन से अधिक हमें किसी भी प्रचारक का आदर नहीं करना है। That's why I show you Scripture for everything I say. इसके लिए मैंने आपको वचन खोलकर Because पढ़ा दिया। I don't want your faith to depend on my cleverness. It must be on God's word. इसके लिए नहीं कि मेरे ज्ञान के ऊपर आपका भरोसा रहे, लेकिन परमेश्वर के वचन The पर। Christian world is full of preachers who are preaching their own cleverness and their own testimonies. मसीह दुनिया उन सब प्रचारों के खुद की साक्षी और जीवन के ऊपर निर्भर है। Many people's faith today comes by listening to testimonies. बहुत से लोग दूसरे की साक्षी सुनकर आते हैं, They hear testimonies on television and big public crusades. They get faith there. बड़े सेमिनारों में और टीवी पर वे लोग बड़ी बड़ी साक्षियां That सुनते हैं, is इसके लिए वे आते हैं। that's a false faith. वे एक झूठा उद्धार है। Romans 10:17 says faith comes by hearing the word of God.
रोमियो 10वां अध्याय इसका 17वां वचन में लिखा है कि विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। If you got faith by listening to somebody's testimony, that is not the faith of the Bible. अगर आप में विश्वास है किसी भाई या बहन की साक्षी सुनकर, तो आपका विश्वास झूठा है। Romans 10 says so clearly, faith comes by hearing the word of Christ. रोमियो 10:17 साफ कह देता है कि So, विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से आता That's है। the first area where we must love the truth. ये पहले जगह है जिसमें हमें सत्य को स्वीकार The करना है। second area where we must love the truth दूसरी जगह जिसमें हमें सत्य से प्रेम करना है is when the Holy Spirit shows us truth about ourselves, कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे विषय में सत्य कहता है, where He shows us that thing you said was because you were jealous. कि जब पवित्र आत्मा कहता है कि ये बात तूने इसके लिए कही क्योंकि तू जलन रखता है। You got some jealousy against that person because he's better than you. उस भाई के या बहन के विषय में तू जलन रखता है क्योंकि तुझसे थोड़ी अच्छी है या अच्छा है। You can be jealous of somebody's children. किसके बच्चों से आप जलन रख सकते You हैं, can be jealous of somebody's house. किसके घर से आप जलन रख You सकते can be हैं, jealous of somebody's job. किसके नौकरी से आप जलन रख You सकते can be हैं, jealous that somebody's more spiritual than you are. कोई आत्मिक रीति में आपसे उन्नत You- पाया हुआ है, उससे आप जलन रख सकते हैं। You can be jealous that people in the church respect somebody else more than they respect you. जो आपको ज्यादा आदर नहीं देते लेकिन जो ज्यादा आत्मिक है उसको आदर There देते हैं, are ऐसे लोगों से आप जलन रख सकते A हैं। thousand things you can be jealous of. हजारों चीजें हैं जिसके विषय में आप जलन रख And then सकते when हैं। you're jealous of somebody, when you're jealous of somebody, अगर आप किसके लिए जलन रखते हैं, you can never bear to hear anything good said about that person. आप उस मनुष्य के लिए, उस व्यक्ति के लिए कभी भी अच्छा सुन नहीं सकेंगे, And you delight in hearing some bad things about that person. और आपको रुचि रहेगी उसके विषय में कुछ बुरा सुनने की। That's the way to test whether you're jealous. ये जलन को परखने का एक तरीका है। You ask yourself, अपने Now- आप को हम पूछेंगे, now I want you to all, in your own interest, expose yourself to this scam. मैं आपको कहूंगा कि इस विषय में आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दर्शित करने के लिए तैयार हो जाएं। If you allow the scan to search your heart, you'll be saved today. आप इस तरीके से अपने आप को जांचने की अनुमति देंगे तो आप आज उद्धार पाएंगे, Otherwise, you'll continue to be deceived. अन्यथा आप हमेशा फंसे हुए रहेंगे। Can you think of someone about whom, if you hear something bad, you're quite happy? क्या आप सोचते हैं कि आप किसी के विषय में जरा बुरा सुनते हैं और आप खुश हो जाते हैं? Be honest about it. इसके विषय में आप ईमानदार हो जाएं। Can you think of someone about whom, if you hear something good, you don't feel very happy about that? आप इसमें अपने आप को जांच ले कि किसी के विषय में आप अच्छा ही सुनकर पूर्ण ज्यादा खुश नहीं होते, And you immediately want to say something negative about that person. उसके विषय में आप कुछ गलत और विरुद्ध में कहना चाहते हैं। Dear brother and sister, प्यारे भाई और बहनों, you must face up to it. You are jealous. You must admit it. Admit that you are jealous. आप इसको स्वीकार करना है कि आपके अंदर जलन है। Love the truth सच्चाई से प्रेम about कीजिए, yourself. अपने विषय में सच्चाई से, Don't give excuses and say no, it's not. अपने विषय में सफाई मत Because दीजिए। if you try to give excuses, you don't love the truth. अगर आप सफाई देते हैं तो अपने विषय में आप सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे। But if you can honestly say today, अगर आप सच्चाई से स्वीकार करते हैं, oh, if I hear bad about anybody in the world, I'm sad. अगर मैंने किसके विषय में बुरा सुना है और दुखी हो गया हूँ, Anybody in the world. पूरे दुनिया में किसके भी विषय में, If I hear something good about anybody in the world, I'm happy. अगर किसके विषय में दुनिया में मैंने अच्छा सुना है तो मैं बहुत खुश हो चुका हूँ। If you can honestly say that, brother, sister, you're really a godly person. You are really? A godly person. आप तभी परमेश्वर के लोग हैं जैसा आप सच्चाई से अगर इस विषय में आप कह सकते हैं। You can reach that point if you're honest about yourself and cleanse yourself. अगर आप उस हद तक पहुंच सकते हैं अगर आप अपने विषय में सत्य के जो See, बताता है परमेश्वर सच्चे हैं। I found in myself that I was a bit unhappy when I heard good news about somebody. मैं अपने आप को जांच कर ये जाना कि अगर किसके विषय में अच्छा सुना तो मैं खुश नहीं हुआ। I went before God and I said, Lord, there's something evil in my heart. मैं इसके विषय परमेश्वर के सम्मुख गया और कहा परमेश्वर मेरे अंदर कुछ बुराई है, Nobody can see it. ये किसने देखा नहीं है। But I saw something there when I heard that news. फिर मैंने जब ये खबर सुना तो मेरे हृदय में And कुछ हुआ I never knew there was such evil in my heart. और मैं इसे जान नहीं पाया ऐसी बुराई मेरे अंदर है। I want to love the truth about myself. ये अपने विषय में सच्चाई को मैं स्वीकार करना I चाहता want to हूँ। be saved from this. मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। God saved me. परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। And then another time, God may show me in some other situation something else. और दूसरे जगह में दूसरे परिस्थिति परमेश्वर मुझे कुछ और बता And सकता है I can keep on cleansing myself और मैं लगातार अपने आप को शुद्ध रख सकता हूँ, कर सकता हूँ till Jesus comes. प्रभु यीशु मसीह के आने तक। Do you know that's what we're supposed to do?
That is what we are supposed to do. ऐसा ही करना हमारे लिए लाजमी है। That doesn't mean we don't serve or witness for Christ. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परमेश्वर की सेवा नहीं करनी है, उसकी गवाही नहीं देनी है। I'm seeking to serve the Lord 365 days of the year. मैं यीशु मसीह की सेवा 365 दिन करना चाहता हूँ। And I believe you should also serve the Lord every single day, witness and share God's word with other people. मैं ये चाहता हूँ कि आप भी यीशु मसीह की गवाही दें और परमेश्वर का सुसमाचार 365 दिन सुनाएं। We don't wait till we are perfect before we start serving the Lord. आपको इसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है कि आप सिद्ध हो जाओ और फिर परमेश्वर की सेवा आरंभ I करो। mean, Peter started serving the Lord the very first day he was filled with the Spirit. He was not perfect. जब पतरस पहले ही दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और परमेश्वर की सेवा आरंभ किया, वो सिद्ध नहीं हुआ But था। as we keep serving the Lord, we must become more and more perfect. पर जैसे जैसे हम मसीह की सेवा करते हैं, हम और अधिक You know, सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। some people accuse us like this. बहुत से लोग कहते हैं हमारे अंदर ऐसा दोष। What are you people just sitting and purifying yourself the whole time? You're just purifying yourselves the whole time? पूरा दिन केवल आपको अपने आप को शुद्ध रखते हो, कोशिश करते हो, कैसे लोग हो? Yeah, but we're also serving others the whole time. लेकिन इसी तरह समय हम दूसरों को भी ऐसा ही करते हैं, सिखाते We're हैं। not sitting inside some building locked up just purifying ourselves. किसी इमारत में बैठकर केवल अपने आप को हम शुद्ध नहीं करते, But we do that पर ये हम करते हैं so that the pipe inside is clean, so that when we serve others, they get some clean water instead of dirty water. ये हम इसलिए कहते हैं कि हमारे अंदर से जो भाव निकल रहा है वो शुद्ध हो जाए, कि दूसरे तक वो भाव पाइप से I माध्यम mean, से if you're पूरा अच्छा getting, जाए। when you open the tap, you're getting dirty water out of it all the time. अगर आप नल को खोलते हो उसके अंदर से गंदा पानी हमेशा आ रहा है, It probably means even though the tank is full of clean water, your pipes are all dirty. वो पानी के टैंक के अंदर अच्छा पानी रहेगा, लेकिन आपके पाइप में गंदगी है। So you got to clean the pipe. आपको पाइप शुद्ध करना है। That's the problem with God's people. ये परमेश्वर के लोगों की समस्या है। The pure water comes from heaven, परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से पवित्र but जल आता है, by the time it goes through me, it becomes dirty in giving it to other people. दूसरों तक पहुंचने तक वो अशुद्ध हो जाता है। And people say, no, brother, we must serve, we must serve, we must serve, we must serve. और लोग कहते हैं नहीं भाई, हमको सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है। Serve people with what? Give them all dirty glasses of water? सेवा किस तरह से करना है? सब लोगों को गंदा पानी देना है No. गिलास में? नहीं, I need to purify myself हमें खुद को शुद्ध करना so है that tomorrow I can give a little cleaner water to that brother. कि मैं कल किसी भाई या बहन को ज्यादा थोड़ा And- स्वच्छ शुद्ध पानी दे And सकूं। next year, the glass of water that comes through me will be much cleaner than this year. और दूसरे साल जो मुझसे ग्लास लोगों को पीने मिलेगा वो आज के साल से बहुत बेहतर Because और I शुद्ध spend होगा। my time purifying myself every day. अगर मैं अपने आप को हर दिन साफ रखने के लिए कोशिश करते रहता हूँ, I love the truth when God shows me something about myself. उस सत्य से प्रेम करता हूँ जो परमेश्वर And मुझे अपने विषय में बताता है, then I'll never be deceived. तब मैं कभी फंसूंगा नहीं। I will never imagine that I'm born again when I'm not born again. मैं इसका अंदाज नहीं लगाऊंगा कि मेरा नया जन्म हुआ है जबकि मेरा नया जन्म I हो will चुका not है। imagine that I'm filled with the Spirit just because I speak in tongues. मैं ये विचार नहीं करूंगा कि मेरा नया जन्म हो चुका है क्योंकि मैं अन्य भाषाएं बात कर रहा हूँ। See 1 John 3. 1 यूहन्ना 3 अध्याय हम पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 3 Here it अध्याय। speaks about the hope that every believer has. उस आशा के विषय में पढ़ेंगे जो हर एक विश्वासी को है। We say the hope is the second coming of Christ. हमारी आशा हम ये बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, That's only half the hope. ये अधूरी आशा है। You know, it's like a coin. ये एक सिक्के के जैसा है। You turn the other side, something is printed on the other side also. Sorry. Yeah. No, something is printed on the other side of the coin also. हाँ, सिक्के के दूसरी ओर दूसरा कुछ भी छपा हुआ है। What is written on the other side? दूसरे भाग में क्या लिखा हुआ है? 1 John 3. 1 यूहन्ना 3 अध्याय He will come, वो verse 2, आएगा। verse 2, दूसरे वचन में, and we shall see him as he is. और उसे हम उसी रीति से देखेंगे जैसा वह है। There are two things. दो बातें हैं। One, he will come back. वो आएगा। Second, दूसरी बात, we shall be like him. हम उसके जैसा हो जाएंगे। He will come and we shall see him and we shall be like him. वो आएगा और हमें उसी तरह से जैसा वह These are देखेंगे the और उसके जैसे बन जाएंगे। Two sides of the blessed hope. आशीर्वादित आशा का ये दो भाग है। Most Christians think of only one side of it. बहुत से मसीह लोग उसके एक साइड के एक भाग को देखते हैं। He will come and we shall see him. वो आएगा, हम उसको देखेंगे। I say, brother, sister, that's only one side of the hope. मैं कहता हूँ भाई और बहनों, आशा का केवल एक ही पहलू है। What is the full hope? पूरी आशा क्या है? The full hope is we shall be like him. दूसरी पूर्ण आशा यह है कि हम उसके जैसे So, बनना। when you have both sides of the hope, आशा के अगर आपको दोनों पहलू है, what will you do?
आप क्या करेंगे? How do you know whether you got both sides of the hope? आपको कैसा पता चलेगा कि उस होप के आशा के पूरे भाग आपके You पास can है? say, yeah, I've got both sides of the hope. आप कहेंगे हाँ दोनों No. स्तर है मेरे पास। Don't be so sure. ये इसके लिए पूरी रीति से खातरी मत रखिए। Here is the test. यहाँ उसकी परख दी गई है Verse 3. तीसरे वचन में। Everyone who हर एक has this hope will spend his time purifying himself until he becomes as pure as Jesus Christ. प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह पवित्र है। You want to find out whether you got this hope or not? Both sides of the hope? आप देखना चाहते हैं कि ये दोनों तरफ की आशा कैसी है? Do you want to find out whether you have this? आपने जांचा कि आप में ये है? Ask yourself this question. ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। Do you cleanse yourself every day क्या आप from अपने- sin, some new sins that you're discovering in your life? नए नए पाप अपने जीवन में आप देख कर क्या उससे हर दिन आप शुद्ध हो रहे हैं? Have you discovered some new sins in your life in the last 1 year? क्या एक साल में आपने अपने अंदर कुछ नए पाप देखे हैं, पहचाने हैं? You say no. आप कहते हैं नहीं, Then you're deceiving yourself. फिर आप खुद को फंसा रहे हैं। Everyone who has this hope purifies himself. हर एक के बाद जैसी ये आशा है वो अपने आप को इसी तरह शुद्ध Now, करते the रहता only है। person who can say, I don't need to purify myself, केवल एक ही मनुष्य वो कह सकता है मुझे अपने आप को शुद्ध रखने की is आवश्यकता the नहीं। one who can say, I've already become like Jesus Christ. जो ये कहे कि मैं अभी प्रभु यीशु के जैसा बन गया हूँ, I don't need to purify myself. I already become like Christ. मैं मुझे कोई शुद्ध होने की जरूरत नहीं, मैं यीशु मसीह जैसा बन गया हूँ। Nobody will dare to say that. कोई भी ऐसे वक्ति में हिम्मत नहीं ऐसा कहने की। I'll tell you my own experience. मैं अपना खुद का The, आजमूद आपको बता रहा हूँ। closer I get to the Lord, मैं जितना परमेश्वर के निकट जाता हूँ, the more I discover something जितना मैं प्रभु के निकट जाता हूँ, मैं उतना और अधिक डिस्कवर that I'm more unlike Christ than I हाँ। thought I was. जितना मैं नजदीक जाता हूँ यीशु मसीह के, उतना पहचानता हूँ कि मैं उसके जैसा और अभी नहीं बना हूँ। I think I'm becoming like Christ, and I say, oh boy, what a distance to become like Christ. जब मैं ये सोचता हूँ और ये देखता हूँ Because- तो मुझे लगता है कितना कठिन है यीशु मसीह जैसा Because बनना। when we are far away from the Lord, we don't see those little acts of selfishness as जब- unchristlike. जब परमेश्वर से दूर रहते हैं, छोटे छोटे हमारे स्वार्थों को हम नहीं पहचानते, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो उसे जानते हैं। Most Christians don't see the selfishness in their own lives. बहुत से मसीह लोग अपने जीवन में स्वार्थ को नहीं जांच पाते, Most Christians don't see the lack of compassion for other people in their own lives. अपने जीवन में दूसरों के प्रति, लोगों के प्रति दया को And जान नहीं पाते, most Christians don't see the hardness in their own hearts. अपने हृदय में बहुत सख्त और कड़क ऐसा कठोरपन वे नहीं देख Most पाते। Christians don't see the pride in their own life. अपने हृदय में, अपने जीवन में बहुत मसीह लोग घमंड को नहीं देख पाते। Most Christians are just patting themselves on the back all the time saying, I'm okay. बहुत से मसीह लोग अपने पीठ थपथपा कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, But they find plenty of fault with other people. दूसरे लोगों में बहुत दोष है। I'm not talking about doctrine. मैं वचन के लिए नहीं कह रहा हूँ, Doctrine is very clear to see where's light and darkness. वचन बिल्कुल सही है, कहाँ उजाला है कहाँ Because अंधेरा है बताता we है। say everything that's here is light, everything that's not here is darkness. It's very easy. ये बहुत आसान है, यहाँ कह दो आपके इसके अंदर जो कुछ है उजाला है, जो इसके अंदर नहीं है वो So अंधेरा है। I compare everybody with scripture, not with myself. मैं हर एक को वचन के आधार पर But that is जांचता हूँ, doctrine. ये वचन है। But when it comes to sin in our life, पर आप जब अपने विषय में, पाप के विषय में आते हो, that's not so easy to see. वो इतना आसान नहीं है देखना। We must be honest and then God will show us more. जब हम ईमानदार बनेंगे तो परमेश्वर हमें ज्यादा दिखाएगा अपने विषय में। I thank God that I get continuous light on myself almost every day. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हर दिन मैं परमेश्वर का प्रकाश अपने ऊपर चाहता हूँ, That makes me a very happy man. और ये मुझे बहुत ही आनंदित व्यक्ति बना देता है। It's like having a bath every day, having a bath or a shower ये every इस day. तरह से होता है कि जैसे मैं हर दिन नहाया हुआ हूँ, You feel fresh. जैसे हम ताजगी पाते हैं रोज नहाने से। Are you getting light on yourself? Are you getting light on yourself? क्या आप अपने ऊपर प्रकाश को पाते हैं हर दिन? On the selfishness and the pride there is in you? तुम्हारे अंदर जो स्वार्थीपन है और घमंड है उसके विषय में, Those are the two main things. ये दो बहुत ही महत्व And की चीजें हैं। love of money is the third one. और पैसे से प्रेम ये दूसरी बात These है। are 2-3 things found in every believer. ये दो या तीन बातें हर एक विश्वासी में पाई If जाती you है। don't ask God to cleanse you from it, you will die with these things still in you. ये अगर परमेश्वर से आप प्रार्थना नहीं करेंगे इससे मुझे शुद्ध करे तो आप इसी में मर You जाएंगे। have to ask God to show you, otherwise He won't show you. आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे मुझे दिखाइए, तब परमेश्वर दिखाएगा, नहीं तो नहीं You say, दिखाएगा। Lord, I want to really be free from these things.
I want to be free from these things. परमेश्वर से आप कहिए कि परमेश्वर मैं इन बातों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, I want to be free. मैं इससे छुटकारा पाना चाहता And if हूँ। you don't ask God to give you freedom, you can't free yourself. आप अपने आप को छुटकारा पाया हुआ नहीं बना सकते अगर आप But परमेश्वर से नहीं if you कहते। love the truth लेकिन आप अगर सत्य से प्रेम and करते you हैं keep cleansing yourself, और अपने आप को शुद्ध रखते रहते हैं, you know what is the result? उसका परिणाम क्या निकलता है? We come into fellowship with other people who are cleansing themselves. हम उन लोगों के साथ संगति में आ जाते हैं जो अपने आप को शुद्ध रखने में रुचि रखते हैं और करते रहते हैं। Now you will understand this verse, 1 John 1:7. 1 यूहन्ना 1:7 को हम यहाँ जान सकते हैं। If we walk in the light, we can have fellowship with one another, अगर हम ज्योति में चलते हैं तो एक दूसरे के साथ हमारी संगति है, with God and with one another. परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ। If you and your wife don't have glorious fellowship, अगर आप और आपकी पत्नी में बहुत ही अच्छी संगति नहीं है, then one of you or both of you are not walking in the light. तो दोनों में से एक या आप दोनों ज्योति में नहीं चल रहे हैं। If you don't have glorious fellowship with your brothers and sisters, अगर आपकी बहुत अच्छी भाई और बहनों से संगति नहीं है, then either you or the others are not walking in the light. तो या तो आप या तो वो परमेश्वर की ज्योति में नहीं चल रहा To है। walk in the light means that I'm getting more and more light on myself. ज्योति में चलना मतलब अधिक अधिक अपने अंदर ज्योति पाना। To stand still in the light means I'm getting no more light. To stand still in the light. लाइट में सीधा खड़ा रहना दृढ़ होकर, Then I'm not progressing. मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ। Walking means I'm getting closer and closer to the light of God. चलना मतलब ये दिखाता है कि नजदीक नजदीक That प्रवेश में means I'm जाना। getting more and more light on myself. ये बताता है कि हम हमारे अंदर और अधिक प्रकाश पा रहे हैं। To me, that is the mark of God's blessing. ये मेरे लिए परमेश्वर की ओर से एक इशारा है So, आशीषित होने when का। people ask me, how do you know whether God is blessing you? लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको कैसे पता चलता है परमेश्वर आपको आशीषित I कर say, रहा it's है? not got nothing to do with money. पर मैं कहता हूँ पैसे के विषय में कुछ It's नहीं, got nothing to do with health. तंदुरुस्ती के विषय में कुछ नहीं। It's got to do with God showing me sin in my life which I can put away. जो परमेश्वर मुझे दर्शाता है पाप मेरे जीवन में जिससे मैं अलग होता That's जाता हूँ। how I know God is blessing me. ये मुझे दर्शाता है, बताता है कि परमेश्वर मुझे आशीर्वाद कर रहा है That I get light on myself. और मैं अपने ऊपर लाइट और प्रकाश को ज्योति को Become पाता more and हूँ। more free from sin. और ज्यादा मैं पाप से दूर होता जाता That is how we can become one body. हूँ। इसी तरह से हम एक देह बन सकते And हैं। it's because people don't do that in their life, they never become one body. Because they don't do it, they don't become one body. लोग करते नहीं है इसे, इसके लिए वो एक देह बन नहीं सकते। So let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, पवित्र पिता, it's so easy to understand these things in our mind. हमारे बुद्धि में इन सब बातों को समझना कितना आसान है। Help us to practice them. हम इसको अमल में लाए, इसके लिए हमारी सहायता कीजिए। Pray in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। Amen. आमीन।